Good afternoon, everyone. This is the sum we will do. Balance sheet of Shiva Limited on 31st March 2017 was as under. Liabilities are given 10% preference shares of rupees 100 each, fully paid 5 lakh. So number of preference share 5 lakh divided by 100 will be 5,000. We have equity shares of 10 each, fully paid 10 lakhs. Security premiums 4 lakh, general reserve 3 lakh, 8% debentures of rupees 100 each 4 lakh, current liabilities 4 lakh, fixed asset in the asset side, fixed asset is there for 11 lakh, investment 4 lakh, bank balance 90,000, other current asset is 14 lakh, preliminary expenses 10,000, and the total of the balance sheet is 30 lakhs. On the above date, the company decided to redeem its preference shares at 10% premium. तो अगर एक शेयर 100 रुपीज का है मीन्स 10% premium 100 का 10% is 10 rupees. Means the company has decided to redeem the preference shares at 110 rupees. 100 rupees for the share and 10 rupees above the face value or the nominal value. That is 110 rupees each share के पीछे शेयर होल्डर को मिलेगा. एवरी शेयर इज ऑफ 100 रुपीज बट 10 रुपीज का प्रीमियम के साथ इट विल बी 110 rupees. For this purpose, the company sold its investment at a profit of 10%. So 44 lakh का investment है, 10% profit में sell किया means more than 4 lakh. 4 lakh का 10% is 40,000. मीन्स कंपनी ने 4,40,000 में इन्वेस्टमेंट सेल किया एंड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. तो कंपनी ने क्या किया, 25,000 इक्विटी शेयर सेल किया 10 रुपीज का एट पार और प्रेफरेंस शेयर्स फिर ड्यूली रिडीम्ड. मीन्स यहाँ पे फ्रेश इशू होता है 2,50,000 25,000 into 10 that is 2,50,000 पार में मतलब फेस वैल्यू में सेल किया. तो जो बैलेंस अमाउंट है उसका हम CRR क्रिएट करेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स वे ड्यूली रिडीम्ड, all the money under new issue was received and all money on redemption was paid. You are required to give journal entries for the above transactions, keeping in view all the legal requirements. So let us prepare journal entries in the books of Shiva Limited. Journal entries in the books of Shiva Limited. Journal entries in the books of Shiva Limited. Let us prepare the journal entries column. So डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर से कर लेते. पर्टिकुलर्स, देन LF डेबिट क्रेडिट. So let us do the formatting. अमाउंट कॉलम को भी एडजस्ट कर लेते हैं. So this is done. So let us give the naming, serial number, then particulars, then LF, then debit, credit. So the first one, हम लोग को क्या चाहिए, वी वांट फंड्स फॉर रिडेम्पशन. तो फंड्स के लिए क्वेश्चन में बोला इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितने में सेल किया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तो कॉस्ट है 4 लाख
प्लस 40% में हमने सेल किया। क्वेश्चन में बोला है कि सॉरी 10%, नॉट 40%, 10%। सो क्या किया हमने, 4 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% प्रॉफिट में सेल किया। मीन्स वी हैव सोल्ड फॉर 4,40,000, 4,40,000 में सेल किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल किया तो इन्वेस्टमेंट असेट है वो बाहर चला गया, तो हमने क्रेडिट में बता दिया। एंड द इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 4 lakhs। तो जो ऊपर हमने 40,000 एक्स्ट्रा में सेल किया उसको बोलेंगे, उसको किस में दिखाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या है, इन द ब्रैकेट वी कैन राइट इट इज प्रॉफिट एंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज 40,000. So with this entry is done. We can say being investment sold, being investment sold for redemption, investment sold for redemption. Now ये हो गया. Now we go to the second entry. After selling the investment, company has issued 25,000 equity shares of 10 each in the market. Company ने क्या किया, cash bank account, again the company has sold equity shares in the market. So cash bank account debit, cash bank account debit कितना, 25,000 into 10 rupees का इक्विटी शेयर इज कमिंग टू 2,50,000. इट इज कमिंग टू 2,50,000. टू बोलेंगे किसके लिए सेल किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इट इज 25,000 into 10 which is equal to 2,50,000. तो इसको बोलेंगे being equity shares sold, being equity shares issued, being equity shares issued, equity shares issued for the purpose of redemption, for the purpose of redemption, purpose of redemption. तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशूड लिखेंगे तो भी चल जाएगा. नाउ व्हाट वी विल डू, आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, अभी थर्ड एंट्री हम लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया एज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. हमने इक्विटी शेयर्स रिडेम्पशन के लिए सेल किया. अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे. हम रिडेम्पशन के लिए वी विल come ahead for doing the redemption and we have 10% preference shares of 100 each, 5 lakh. ये हम लोग और प्रीमियम भी देने वाले 10% का. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10%, it is 10% only ना, 10% preference shares of rupees 100 each. तो 10% preference share capital, 10% preference share capital अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट है, इट इज हाउ मच, 5 लाख. मतलब 5 लाख अगर एक 100 रुपीज का शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा, ये दिया नहीं है. तो डायरेक्टली हमें जो चाहिए दैट इज देयर, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी इट इज 5,000 into 100. कैसे पता चला, 5 लाख को 100 से डिवाइड किया तो पता चला कि नंबर ऑफ शेयर्स इज 5,000. फिर हम एक और चीज हम लोग देने वाले, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट. कितना, 10%, मतलब 10 रुपीज, 5,000 into 10. तो प्रीमियम कितना दे रहे, 50,000. डायरेक्टली अगर हम 5 लाख का 10% निकालेंगे तो भी हमें ये अमाउंट मिलेगा. एंड ये पूरा अमाउंट हमें किसको पे करना है, ये हमें पे करना है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विच इज इक्वल टू 5,50,000. इसको बोलेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन.
being amount due on redemption, being amount due on redemption. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हमें देखो वी रिक्वायर 5 लाख रुपीस, हमें कितना चाहिए 5 लाख रुपीस चाहिए नॉमिनल वैल्यू रिडेम्पशन में पे करने के लिए और 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए प्रीमियम के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 2,50,000 5 लाख में 2,50,000 इक्विटी शेयर से आ गया। तो नेक्स्ट वन हमें CRR कितना क्रिएट करना पड़ेगा वो भी देखना रहेगा। सो वर्किंग नोट में वी विल सी, वर्किंग नोट में वी विल सी नॉमिनल वैल्यू ऑफ preference shares to be redeemed, preference shares to be redeemed. Let us see कितना है 5,000 into 100 which is equal to हमें 5 लाख रुपीस चाहिए। तो हमने फ्रेश इशू कितना किया इसमें से लेस करना है। Let us remove this gap which is there here. Let us remove this gap. So I will go here, remove the gap. So पैराग्राफ में जाके ये गैप रिमूव कर देंगे so that it take either less nominal value of equity shares, new equity, nominal value of new equity shares या new shares issued for redemption, new shares issued for redemption. कितना shares issue किया 25,000 into 10 which is equal to 2,50,000. तो CRR is the balance, तो बैलेंस के लिए हमें CRR चाहिए। तो CRR भी कितना होता है 5 लाख में 2,50,000 ऐसे आया। तो ये remaining is the CRR. Now we will see sources of CRR. Let us go to the question and see which reserve we can use. सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं यूज कर सकते CRR के लिए, जनरल रिजर्व यूज कर सकते, सिर्फ रिजर्व देखना है तो दो ही रिजर्व है इधर, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वी कैन नॉट यूज फॉर CRR, जनरल रिजर्व वी कैन यूज 3 लाख में। तो 3 लाख में हम 2,50,000 यूज कर लेंगे। तो विल राइट हियर जनरल रिजर्व हम कितना चाहिए हमें 2,50,000। तो जनरल रिजर्व 2,50,000 यूज किया तो जनरल रिजर्व इस रिजर्व लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस यूज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो 2,50,000 के लिए यूज किया, टू क्या क्रिएट हुआ CRR, CRR का फुल फॉर्म क्या है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सो ये क्रिएट हुआ कितने के लिए 2,50,000 के लिए। तो नरेशन बोलेंगे बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम के लिए, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए भी हमें रिजर्व चाहिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए 50,000 एंड जनरल रिजर्व में 3 लाख है। जनरल रिजर्व में दैट इज 3 लाख, मैंने 2,50,000 यूज कर लिया तो और 50,000 इज रिमेनिंग, तो वो भी मैं यूज कर सकती हूँ प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख में से अभी कितना हमने यूज कर लिया है 2,50,000 ऑलरेडी यूज कर लिया है, 2,50,000 ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो हमें चाहिए सिर्फ 50,000 और इसमें बराबर 50,000 बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हो रहा है ये प्रीमियम डेबिट में है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000. This cancelled
प्रीमियम के लिए भी पैसा जमा हो गया तो ये डेबिट को कैंसिल कर दिया। अब 5 लाख कहाँ से आया? 2,50,000 शेयर से, 2,50,000 CRR से मिल गया 5 लाख के लिए पैसा, और 50,000 के लिए जनरल रिजर्व यूज कर लिया। तो बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड, पूरा पैसा मिल गया। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम पेमेंट कर सकते हैं रिडेम्पशन में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट में देखो, इधर इनको पैसा दे देंगे तो इनको कैंसिल करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट इज इन द क्रेडिट। अब इनको पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? It is 5,50,000 to cash bank account। कितना है ये? 5,50,000। इसको बोलेंगे being amount paid on redemption। So with this sum is done. So the following sum, the next sum what we will do is, the following items appear in the balance sheet of Deshbandhu Limited as on 31st March 2017। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है जिसमें इक्विटी का ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट विच a company can issue in its lifetime। तो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख, जिसमें कंपनी ने कॉल्ड आउट किया है, सब्सक्राइब किया है, पेड अप किया है 4 लाख शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का ऑथराइज भी सेम है, इशूड भी सेम है, सब्सक्राइब भी सेम है। मतलब कंपनी ने अपना मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया है, जो कि है 60,000 शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो 6 लाख शेयर 60,000 का शेयर्स है और एक शेयर 20 रुपीज का है। फिर इन्वेस्टमेंट है 3,50,000 का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 7 लाख। सो it was decided to redeem the preference shares at a premium of 5% as on 31st March 2017. It was further decided टू सेल। तो यहाँ पे डिसाइड किया कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी, और उसके बाद क्या डिसाइड किया? टू सेल इन्वेस्टमेंट फॉर ₹3 लाख। इन्वेस्टमेंट को 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, बट वी विल सेल फॉर 3 लाख। मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है। आप 3,50,000 का चीज आप 3 लाख कम पैसे में सेल कर रहे हो, तो लॉस हो गया। एंड फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ ₹1,40,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं, हमें 1,40,000 का बैलेंस रख के बाकी का अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम उतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 to raise the balance funds required. So above decision have been carried out and preference shares have been redeemed. तो इसके हिसाब से let us prepare journal entries। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स का नंबर्स नहीं दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्हाट इज द नेम? देशबंधु लिमिटेड। सो यहाँ पे लेट अस इंसर्ट टेबल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। So date and then debit, credit के लिए एडजस्ट करना है, एंड लेजर फोलियो जो कि ब्लैंक ही रहने वाला है। सो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट।
सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, रिडेम्पशन के लिए पैसे चाहिए। तो पर्टिकुलर्स का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसे आएगा। इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो वी विल गेट मनी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में सेल किया इन्वेस्टमेंट को? यहाँ पे दिया देखो, सेल इन्वेस्टमेंट फॉर 3 लाख। तो इन्वेस्टमेंट को 3 लाख में सेल किया, बट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो कितना है? 3,50,000। तो इन्वेस्टमेंट इज द असेट, बेचेंगे तो कम होगा, कम असेट डेबिट बैलेंस पर कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे 3,50,000। तो यहाँ पे लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में बताएंगे कितने का लॉस है, हाउ मच इज द लॉस अमाउंट। 3,50,000 का चीज 3 लाख में सेल किया, सो 50,000 का लॉस है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्विटी शेयर होल्डर, इसको नरेशन देते हैं, being investment sold at loss. So इसके बाद let us go to the second entry. हमें number of equity shares चाहिए, तो उसके लिए let us go to the working note because number of equity shares is not given. So working note में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस है। हमारे पास बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, क्योंकि एक ही रिजर्व है यूज करने के लिए और उसमें भी 1,40,000 साइड में रखना है। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हाउ मच? 7 lakhs. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कितना है? इट इज 7 lakhs. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 7 लाख। अभी लॉस हो गया तो कितना यूज हो गया? देखो लाइबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में आया मतलब कम हुआ, हमने लॉस हुआ तो 50,000 उसमें कम हो गया, बैलेंस कम हो गया बिकॉज लॉस हो गया। तो पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आया, लाइबिलिटी है, रिजर्व है, लाइबिलिटी है, कम होगा। क्रेडिट में आया तो ऐड करेंगे, तो लेस हम किस में लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कितना लॉस है? 50,000। तो इसके बाद हमारे पास 6,50,000 है। अब हमारे पास कितना बैलेंस है? 6,50,000। इसमें हमें प्रीमियम भी पे करने के लिए चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करने के लिए भी हमें पीएनएल अकाउंट का बैलेंस चाहिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना प्रीमियम है जरा हम लोग देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स है, हाउ मच आर द प्रेफरेंस शेयर्स? 60,000। और हम प्रीमियम कितना देने वाले? 5% का। जरा देखो 20 रुपीज का 5% कितना होता है? हम लोग 20 रुपीज का शेयर है और उस पे 5% का 20 रुपीज का शेयर है, उस पे 5% का प्रीमियम देने वाले हैं। मतलब 60,000 का जो शेयर्स है उससे हम 1 रुपीज का प्रीमियम देने वाले। 1 रुपीज कैसे मिला? 20 रुपीज का 5% इज इक्वल टू ₹1। तो ऐसे हमें मिला कि, और 60,000 शेयर है, हर शेयर को 1 रुपए का प्रीमियम देना है, तो कितना अमाउंट चला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में? 60,000। तो अब कितना बचेगा हमारे पास? अब हमारे पास कितना बचेगा? 6,50,000 में 60,000 गया तो 5,90,000 बचेगा। 5,90,000। और इसमें भी क्वेश्चन में बोला है कितना मिनिमम बैलेंस रिटेन करना है? रिटेन बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट। रिटेन बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट कितना है? क्वेश्चन में बोला है देखो 1,40,000 तो यूज नहीं करना है, उतना रखना ही है बैलेंस। तो 1,40,000 रख के हम कितना यूज कर सकते हैं? हाउ मच इज द प्रॉफिट?
available for redemption. How much is the profit available for redemption? Profit available for redemption is how much? 5,90,000 minus 1,40,000 means हम 4,50,000 यूज कर सकते हैं. तो इसका मतलब हम लोग CRR के लिए 4,50,000 यूज कर सकते हैं और बाकी का जो रहेगा वो फ्रेश इशू रहेगा. तो लेट अस फाइंड आउट नाउ. सेकेंड वर्किंग नोट में अमाउंट, तो इसमें लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड. प्रेफरेंस शेयर्स अभी देखते हैं कितना फ्रेश इशू है. फ्रेश इशू दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो नॉमिनल वैल्यू, इससे पहले जितना भी सम किया सब में फ्रेश इशू दिया था, इसमें नहीं दिया. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड. टू बी रिडीम्ड कितना रिडीम करना है? 60,000 इंटू एक शेयर 20 रुपीज का. प्रीमियम को नहीं लेना है. नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 20 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 60,000. सो कितना होता है ये? दिस कम्स टू 12 lakhs. दिस कम्स टू 12 lakhs. कितना पैसा चाहिए? तो इसमें से लेस करते हैं हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ new shares to be issued. New shares to be issued. तो ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, पर CRR हमें मालूम है कितना है. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन कितना है हमें मालूम है. हम प्रॉफिट का कितना यूज कर सकते हैं हमें मालूम है. हमने अभी फाइंड आउट किया 1,40,000 रिटेन करके हम कितना यूज कर सकते हैं? 4,50,000. तो ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा. बैलेंसिंग फिगर रहेगा ये. तो कितना अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर? जरा करो और यू विल गेट दैट हाउ मच प्रेफरेंस शेयर, सॉरी हाउ मच न्यू शेयर यू कैन इशू. यू विल कम टू नो कि कितना न्यू शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं. इसको ऐसे नहीं लिखना है. तो 12 लाख माइनस 4,50,000 तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो डन. तो अभी हमें पता चला हमें कितना फ्रेश इशू करना है. तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं. इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया जो हमें फ्रेश इशू करना है? तो नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका कैपिटल है. सो क्वेश्चन में बोला है प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लेते. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो कैसे? 7,50,000 डिवाइड बाय एक शेयर कितने का है? ऊपर देखो इक्विटी शेयर कंपनी का कितने वैल्यू का है? कंपनी का इक्विटी शेयर जो है 10 रुपीज का. देखो इक्विटी 10 रुपीज ईच, मतलब कंपनी में जितना भी इक्विटी शेयर रहेगा वो 10 रुपीज का ही रहेगा. तो डिवाइड बाय 10 करो, पता चलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 75,000 इक्विटी शेयर्स. नंबर्स मिल गया. ये हमने फाइंड किया बिकॉज वी नो कि 1 इक्विटी शेयर कितने का है. तो कैश बैक, जब हम लोग मार्केट में इक्विटी शेयर सेल करेंगे तो हम 75,000 इक्विटी शेयर सेल करने वाले हैं. 10 रुपीज का शेयर, 2 रुपीज का प्रीमियम. तो कितना हो जाता है? 10 रुपीज का शेयर, 2 रुपीज का प्रीमियम हो जाता है. 12 रुपीज में सेल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लाख. ये हो जाएगा 9 लाख. और ये 12 रुपीज में यहाँ पे लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 75,000 इंटू 10 बिकॉज एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है. तो इक्विटी कैपिटल में इतना, और हम प्रीमियम में सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम का पैसा हम किस में बताएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में बताएंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये कितना है? 75,000 इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम है
which is coming to 1,50,000. तो इसको बोलेंगे being sufficient number of equity shares issued. इसलिए फॉर रिडेम्पशन. ये क्यों न्यू शेयर मार्केट में सेल किया? फॉर रिडेम्पशन. इसके बाद थर्ड वन पैसा अरेंज हो गया. अभी देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कितना ड्यू है. तो 60,000 प्रेफरेंस शेयर है. 12% प्रेफरेंस शेयर है 20 रुपीज का. 60,000 इज द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर and per value is 20 rupees. Per value is 20 rupees. So what we will do 60,000. तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 into how much is it? 20 rupees. तो कितना होता है 60,000 into 20 is equal to 12 lakh. और हम प्रीमियम भी देने वाले. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट हम 60,000 शेयर पे 1 रुपीज का प्रीमियम देने वाले. कैसे पता? देखो हमने यहाँ पे निकाला 20 रुपीज पे 5%. क्वेश्चन में बोला गया है that redeem the preference shares at 5% प्रीमियम. तो या तो 12 लाख का 5% निकालो बराबर मिल जाएगा, या 20 रुपीज का 5% निकालो प्रीमियम, तो 1 रुपीज का प्रीमियम है. दैट इज इक्वल टू वी हैव टू पे 60,000 प्रीमियम. किसको पे करना है? वी हैव टू पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. कितना पे करना है? 12,60,000. इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. इसके बाद CRR क्रिएट करेंगे. CRR के लिए प्रॉफिट अवेलेबल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है, ये क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और लाइबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है. अगर डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट. तो हमने देखा ना हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में मतलब यूज किया. क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट मतलब हमने उसको यूज किया. कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमने वर्किंग नोट में देख लिया है. CRR कितने रुपीस का क्रिएट होगा? 4,50,000 का. टू इसको क्या बोलेंगे? टू CRR अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. और इसका नरेशन बोलेंगे बीइंग CRR क्रिएटेड. इसके बाद हम क्या करेंगे? जो प्रीमियम दे रहे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, उसके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही यूज करेंगे. बिकॉज क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी पैसा साइड में रखा था. इसके लिए देखो लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 60,000 पहले से माइनस करके रखा है. टू ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट में है, इसके लिए भी पैसा मिल गया तो इसको कैंसिल कर देंगे. टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. कितना अमाउंट है प्रीमियम का? 60,000 एंड 60,000. और इधर लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड
प्रीमियम और रिडेम्पशन एडजस्टेड। इसके बाद अब नेक्स्ट है, पूरा पैसा जमा कर लिया, हमें इक्विटी शेयर हमें 12 लाख चाहिए था, इक्विटी शेयर सिर्फ 7,50,000 मिला, 4,50,000 CRR से मिला, 60,000 चाहिए था प्रीमियम के लिए, वो PNL अकाउंट से मिल गया। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट में है, इनको पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पे करेंगे तो क्या जाएगा, कैश बैंक अकाउंट। कितना पैसा देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सी ईयर 12,60,000, 12,60,000, तो इधर भी लिखेंगे 12,60,000, इसको नरेशन बोलेंगे। बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन redemption. With this sum is done. Thank you so much everyone.